بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں پلوشہ اقبال۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کی مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے گمبٹ شہر میں صوفی میلہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور اسکالر ایاز لطیف سمیت دیگر سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اور کیریئر کاؤنسلنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تعلیمی، سماجی اور ثقافتی موضوعات پر تقاریر کی گئیں۔ صوفی کلام اور صوفی ڈانس کا سیشن بھی رکھا گیا، جس میں مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹیز کے طلباء نے آرٹ اور ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ ثقافتی چیزوں اور فیسٹیول کے کتابوں کے سٹال لگوائے۔ اس موقع پر صوفی میلے میں شریک مقررین نے اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ نوجوانوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے اور ہم سندھی امن، محبت اور صوفی لوگ ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سارے ملک میں صوفی میلوں کا انعقاد کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ سابق ایم پی اے نے یونین کونسل علی والا کے امیدوار کے ہمراہ علاقہ میں مختلف وفات پانے والوں کے ورثاء سے دعائے مغفرت کی اور مقامی سماجی رہنما کو عمرہ کی ادائیگی پر ان کے گھر پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار محمود قادر خان لغاری نے کہا کہ اخون محمد حسن فاروق خان غلزئی ایک بہترین شخصیت اور عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں شعور کی بنیاد پیدا کریں۔ تعمیراتی کام پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور امن و امان خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اداروں کی مضبوطی خود مختاری جمہوریت کی پہچان ہے۔ اس موقع پر چودھری محمد عمر کھرل، عبدالکریم خان ہتبانی کے علاوہ دیگر معززین علاقہ موجود تھے۔ ادارہ برائے انسانی حقوق کے مرکزی دفتر ٹنڈجا میں بانی و چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت کی قیادت میں کراچی ڈویژن کی تنظیموں کے سلسلے میں کراچی ڈویژن کے ذمہ داران کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی سندھ لیڈیز ونگ کی صدر چودھری شازیہ بلال کی قیادت وقت نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر A1 ٹی وی عمران قائم خانی سے۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں ہمارا اعلان پورا پاکستان کے مرکزی دفتر میں آئیں گے اور جو مہمان آئے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اعلان پرامن پاکستان میں مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت آج ہمارے مرکزی دفتر میں منارٹی ونگ کی ہماری مرکزی صدر کوشلیہ مراج، صوبائی سندھ کی لیڈیز ونگ کی صدر چودھری شازیہ بلال اور کراچی کے تمام ذمہ داران کراچی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرنے تھے کہ ہم کس انداز سے کراچی میں سردی کی بھی آمد ہے اور فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جو کراچی کے حوالے سے اہم میٹنگ تھی، مشاورت تھی، تو ایک ارجنٹ میٹنگ پر کل ان کو کال دی تھی، تو آج تمام ذمہ داران مرکزی دفتر پہنچے اور کراچی ہمارا بڑا مضبوط ہے۔ کہ ان غریب لوگوں کی وہ ضرورت مند جو ہمارے آسرے پہ یا اللہ کے آسرے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہماری رسائی ہو سکے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا سسٹم بنایا گیا ہے۔ تسلیم بھائی راجپوت صاحب کی بڑی مہربانی ہے جنہوں نے اتنی بڑی کاوشوں کے ساتھ ایک ایسا، اور میرے تمام ساتھیوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے ماشاءاللہ، اور ہم سب کی ایک ہی نیت ہے کہ ہمارا اعلان پرامن پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف لے کے جائیں اور جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے انسانیت کی اور اپنے دین کی، اپنے وطن عزیز کی اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں۔ ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داری۔ چیئرمین تسلیم راجپوت سے ہم نے گفتگو کی اور کچھ آئے ہوئے مہمانوں سے گفتگو کی جو کہ آپ لوگوں نے سنی۔ جی، کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران قائم خانی، A1 ٹی وی۔ اوکاڑا میں تھانہ صدر کے علاقہ 22 جھیڑی میں بجلی چوروں کا واپڈا ٹیم پر حملہ۔ پولیس نے 3 نامزد 7 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مسلح افراد نے میٹر اتارنے پر بدتمیزی بھی کی۔ FIR کے متن کے مطابق ملزمان عادل، شہزاد، عبدالحی نے واپڈا ملازمین کو حبس بے جا میں رکھا۔ ملزمان نے واپڈا ملازمین صغیر الطاف اور مصطفیٰ پر گولی بھی چلائی۔ پستول
से गोली ना चलने पर मुलाजमीन मौजूदा तौर पर महफूज रहे। मुलजिमान ने हमला बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद किया। मुकदमा SDO रूरल सैयद नवीद की मदियत में दर्ज किया गया। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सर्दियों की आमद के साथ ही चिन्योट के शहरियों ने भी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी सर्दी की आमद है और इसी सिलसिले में शहर भर में गर्म मलबूसात के लंडा बाजार सज चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मेन लंडा बाजार में, जहाँ पर बात की जाए एशिया की गर्म मलबूसात कपड़ों की, तो यहाँ पर कोट, हुड, स्वेटर, जर्सी व दीगर जूते वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और शहरी कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो क्या खरीदने आए। जी बताइएगा, यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पर जैकेट खरीदने आया हूँ। तो पिछले साल जैकेट थी 300 की और इस साल जैकेट है 1500 की और कोई मुनासिब रेट में मुझे कभी तक जैकेट नहीं मिली। घंटा हो गया मैं घूम रहा हूँ और शूज़ मैंने पता करा है, शूज़ कोई 2000 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है और पिछले साल ये शूज़ मैंने 300 के लिए थे, 500 के भी लिए थे, अब ये 1500 बता रहे हैं। अब मैंने सारा लंडा बाज़ार घूम लिया है, मुझे कोई मुनासिब रेट में नहीं मिल रहा। जी जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अब लंडा बाज़ार में भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर गर्म कपड़े कम कीमत में मिल जाएं। जी ठट्ठा में साबिका सूबाई वजीर शिराजी ग्रुप के सरवान की तीसरी बरसी ठट्ठा शहर में शिराजी हाउस में मनाई गई, जिसमें ठट्ठा सजावल बदीन के हजारों लोग शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सैयद एजाज अली शाह शिराजी भुट्टो की तरह ताकत का सरचश्मा आवाम के फलसफा पे यकीन रखता है, इसलिए आज हजारों की तादाद में लोग शरीक हैं। तकरीब से सैयद एजाज अली शाह शिराजी के भाई सैयद शफकत शाह शिराजी समेत दीगर ने भी खिताब किया। दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फकीर अली नवाज हाशमी के साहबजादे शाहिद हुसैन M.Phil करके आज सुबह पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां साहबजादा अब्दुलसत्तार हाशमी समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इस्तकबाल किया। कराची से करीमाबाद शरीफ तक मुख्तलिफ शहरों में अकीदतमंदों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर साहबजादा शाहिद हुसैन ने मीडिया से बात करते कहा है कि हदीस शरीफ और कुरान मजीद के उलूम को हासिल करने M.Phil किया है। मजीद उलूम हासिल करने के लिए PhD भी करूँगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि काश्तकारों की तरफ से खाद की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने खाद डीलर्स की दुकानों पर सेल्स के लिए रेवेन्यू अमला और पटवारियों को तैनात कर दिया है। AC खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। AC तारिक महमूद गोंदल ने गोदामों और स्टोर्स को चेक किया, स्टॉक का जायजा लिया। इस मौका पर AC तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि गंदम को उस वक्त खाद की अशद जरूरत है, अगर खाद ना दी गई तो नुकसान हो सकता है। तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि किसान इतनी खाद लें जितनी उनकी जरूरत है, ताकि हर किसान अपनी जरूरत पूरी कर सके। पाकपतन में पूरे इसरार तौर पर 3 माह कबल घर से लापता होने वाले रिटायर्ड मास्टर के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बीवी ने बहन के साथ मिलकर कत्ल करके लाश घर छत पर दफन कर दी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। के इलाके में बच्चों के झगड़े पर बीवी ने बहन के साथ मिलकर रिटायर्ड मास्टर को कत्ल करके शौहर के लापता होने का ड्रामा रचा दिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक पुलिस ने मुलजमा की निशानदेही पर घर की छत पर दफन लाश को बरामद कर लिया। हुआ कि मास्टर साहब की साली उनके साथ रहती थी, वो तलाक याफ्ता थी और उनकी मिसेस के पास ही रहती थी। उनके बेटों को मास्टर साहब ने अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन वो अपनी साली को अपने साथ रखने पर रजामंद नहीं थे, जिस पे उनके घर में झगड़े होते रहते थे। इससे तंग आकर उनकी बीवी नाहिद ने अपनी बहन सिद्रा के साथ मिलके मास्टर साहब का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उनको घर की ऊपर वाली मंजिल में एक जगह पे गड़ा खोद के वहां पे उनको दफन करके उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। पुलिस ने PFSA के साथ मिलके वहां से लाश बरामद करके तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए और इस पे मजीद तफ्तीश जारी है। के 3 माह से लापता होने पर दोस्त ने इतला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बीवी और साली को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि चीन का मुल्क में बदउनवान अनासिर के खिलाफ मजीद इकदामात का इंदिया। आला क़यादत का मजबूत सेल्फ गवर्नेंस, नज़्म ज़ब्त के नफाज और बदउनवानी से निमटने के लिए जारी जंग को मजीद आगे बढ़ाने पर जोर। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन की आला सियासी क़यादत की जानिब से आइंदा साल 2024 के माशी अमूर के जायजे, पार्टी के तर्ज अमल और इंसदाद बदउनवानी के अमूर को तरतीब देने और CPC के तादीबी कार्रवाई से मुतल्लिक ज़वाबित का जायजा लेने के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने की। इजलास में मुआशी कुव्वत को मुअस्सर तरीके से बढ़ाने, खतरात को रोकने और कम करने, समाजी तवक्कुआत को बेहतर बनाने और मुआशियात की मुस्बत रफ्तार को मुस्तहकम और बढ़ाने के इक़दामात पर जोर दिया गया। इजलास में इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए पेशरफ्त को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर भी जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि मुल्क को एक फ़ाल मालियाती पॉलिसी और एक मोहतात मालियाती पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखना चाहिए। इजलास के दौरान साइंसी और तकनीकी इख्तरात के जरिए जदीद सनती निज़ाम को फ़रोग़ देने और सनती और सप्लाई चैन की लचक और सलामती को बेहतर बनाने की कोशिशों पर भी जोर दिया गया। शुरका ने इस मौके पर इंज़बाती और निगरानी के अमूर को मजबूत करने और कड़ी सेल्फ गवर्नेंस के फ़रोग़ पर जोर दिया और कहा कि तर्ज़ अमल की बेहतरी, नज़्म ज़ब्त के नफाज और बदउनवानी से निमटने के लिए मुसलसल कोशिशें की जाएँ। इजलास के दौरान यह अज़्म भी ज़ाहिर किया गया कि बदउनवानी के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया जाएगा। फजूल रस्मों, नौकरशाही, खुशामद और असराफ की सख्ती से रोकथाम, निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने और नज़्म ज़ब्त के मुआयने और निगरानी के एहलकारों की एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की जाएगी जो आला पेशा वाराना सलाहियतों की हामिल हो। चीन की आला क़यादत की जानिब से इस अहम सरगर्मी के दौरान आला सतह के खुलेपन और बैरूनी सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी अपने अज़ाइम का इजहार किया गया है, जिससे यकीनी तौर पर इस वक्त आलमी मईशत की बहाली को भी नुमाया मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। दादू में यूरिया खाद ब्लैक पर फरोख्त होने लगी। किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं। गरीब किसानों के लिए यूरिया खाद मिलना मुश्किल हो गया। जिला दादू में डीलर माफिया ने यूरिया खाद 3700 का ब्लैक पर 5200 में फरोख्त करने लगे। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू शहर में एक हारी के साथ। तो यहाँ जैसे ही फसल की मौसम शुरू हुई है तो यहाँ एग्रो यूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फसल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक हारी से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा महबूब नाम है भाई। अभी यहाँ यूरिया बहुत महंगी हो गई, तो बहुत महंगा हो गया है। अभी तो इस वक्त इतना महंगा है जो ब्लैक पे चलता है। हम गरीब हारे का कोई गुजर सफ़र नहीं है। 5000 के 6000 के अंदर में बोरी हो गई। हम गरीब कहाँ से लाऊं पैसे जो ऐसे फसल को आबादी को गेहूँ को आबादी हो गई, ऐसे बच्चे को रोज़ी मिले। बहुत रोज़ी तंग हो गई है। ये बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े हुक्मरान हैं, उन्हें ये अपील है तो हमारे को ये सरकारी अग में भेजे जो ऐसा गरीब को गुजर सफ़र हो सके। कहाँ से नुकसान है भाई? इधर नुकसान है, ज़मीन के नुकसान है, पैसों का नुकसान है, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा नौकरी भाव में भाई। हाँ, ये तो है ना, अच्छी फसल नहीं, असल फसल नहीं हो गई, इसको गंद हो गया, इसको कीड़े लगेंगे अगर कोई आबादी सही तरीके से नहीं होगी। हम गवर्नमेंट की अपील है तो जो नकली भाव भेजेंगे उसकी कार्रवाई करे हुकूमत के। और यूरिया ब्लैक पर बिकेल पर हो रहा है, ये देखो असली नहीं दे देना ब्लैक दे। यूरिया की कितनी के 5000 के 6000 में बोरी है। हम गरीब कहाँ से लाऊं? ये फसल देखो जिसके 1 महीना डेढ़ हो गया, इसको मैंने यूरिया नहीं दी, किसके ये आबादी न होगी? हम बच्चों के गुजर सफ़र कैसे हो गए? हमारी के खुदारा इसको मदद करो, ये यूरिया भान को सरकारी रेट में हमारे को फराहम करो जो हम गरीबों को इसे रोज़गार होए। जी, आपने सुनी यहाँ ज़मीन आबाद करने वाले एक हारी की बातें। उसने मुतालबा किया है वक्त के हुक्मरानों से कि यूरिया की कीमतों में कमी की जाए, सरकारी रेटों पर उसको फ़रोख्त किया जाए। जो भी लोग जो ब्लैक पर विक्रो करें यूरिया को या नकली जो यूरिया बना रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला।
ठारू शाह और गिरदो नवाह में बदअमनी पर काबू ना पाया जा सका, लूट मार मामूल बना हुआ है। ठारू शाह लिंक नौशहरू फेरोज रोड पर गांव नवाज योभान के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद ने पुलिस एहलकार मुनीर खोसो से असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल, ATM कार्ड, नकद रकम समेत सरकारी जैकेट भी छीन कर फरार हो गए। पुलिस एहलकार का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जेल पर ड्यूटी करता हूं, सुबह ड्यूटी पर जा रहा था कि 3 नामालूम मुसल्ला अफराद ने असलहे के जोर पर लूट मार की, जबकि मज़ाहमत करने पर तशद्दुद का निशाना बनाकर फरार हो गए, जिसकी मज़म्मत करता हूं। उसने मुतालबा किया कि इंसाफ करके मुल्जिमान गिरफ्तार किए जाएं, मोटर बाइक और दीगर सामान वापिस कराया जाए। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, लड़की के रिश्तेदारों ने जोड़े पार जमीन तंग कर दी, कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। लड़की और लड़के का आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसने अपनी मर्जी से मोहम्मद आरिफ सोलंकी के साथ पसंद की शादी की है और मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बसर करना चाहती हूँ। अब मेरे रिश्तेदार हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं, जिन्होंने हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी है, जो आए रोज़ हमें कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। इस सिलसिले में हमने खैरपुर मिलिस के सेशन कोर्ट में शरई हक निकाह किया है। खातून ने वज़ीर आला सिंध और पुलिस के आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। काजी अहमद की तारीख में पहली बार सिंध अदबी बोर्ड की जानिब से एक रोज़ा ऑल सिंध मुशायरा काजी अहमद नाज बाग की तालिब मौला लांडही में मुनअकिद हुआ, जिस मुशायरा में सिंध भर से मर्दों, ख़वातीन, शायरा, कॉलम निगार और सिंधी अदब से दिलचस्पी रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि नाज बाग में मुनअकिदा मुशायरा की सदारत साबिका सिंधी अदबी संगत के जनरल सैयद यूसुफ सिंधी की सदारत में हुआ। इस मौका पे बड़ी तादाद में सिंध के शायर, अदीब, कलमकार, नामानिगार और मुफक्किरों ने शिरकत की और अपनी शायरी के वसीले खूबसूरत गजल समेत तारीख पर रोशनी डाली। खबर शामिल करते हैं डेरा अलयाद से, जहां गवर्नमेंट हाई स्कूल भट्टी मोहल्ला के प्राइमरी सेक्शन की बिल्डिंग का काम 2 साल से अधूरा पड़ा है। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट जफराबाद के स्कूल वीरानी का मंजर पेश करने लगे। नई तामीर होने वाली बिल्डिंग शुरू तो हो गई, मगर 2 सालों से मुकम्मल न हो सकी, जिसकी वजह से तुलबा असातिज़ा के साथ साथ स्कूल इंतजामिया भी परेशानी का शिकार है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि बार बार जिले इंतजामिया और B&R को दरखास्तें दी, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब बिल्डिंग मुकम्मल न होने से बच्चों को इंतहाई तकालीफ का सामना है। टेक्सला के सीनियर सहाफ़ी और CNN न्यूज़ की रिपोर्टर इफ़त राउफ को गैर मुल्की अफ़गानियों की पुश्त पनाही में शेल्टर मुहैया करने वाले आज टेक्सला अदालत में अबूरी ज़मानत के लिए पहुँच गए, जिस पर टेक्सला और वाह के सहाफ़ियों का मुल्जिम से सीनियर खातून सहाफ़ी को धमकियाँ और हरासा करने के सवाल पर मुल्जिम ने दोबारा धमकियाँ देना शुरू कर दी। सहाफ़ियों का ये कहना था कि हम हर महाज पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर में किसानों को मुकर्ररा निर्खों पर खाद फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इंतजामिया का खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसीलदार चौधरी सईद अहमद अरई ने भी कोटमिटन और राजनपुर में खाद के मुख्तलिफ गोदामों में छापे मारे और कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर महमदरान और तहसीलदार चौधरी सईद अहमद अरई का खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ गोदामों और दीगर मकामात पर 1 सितंबर से अब तक 900 बोरी खाद, जिसकी मालियत 32,36,400 रुपए है, कंट्रोल रेट पर सील करा दी गई, जबकि 8 FIR दर्ज कराई गई। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।